सो अभी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन, है ना? तो ट्रांसमिशन वाज डिस्कस्ड. ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाज ऑलरेडी ओवर, है ना बेटा? ट्रांसमिशन का रिकॉर्डिंग देख लेना कल वाला, 100% वो देखना. ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाज ऑलरेडी ओवर. लोकोमोशन मूवमेंट में करवा दिया था मैंने. तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए वी स्टार्ट ऑफ विद द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम. तो व्हेन वी टॉक ऑफ द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के कंपोनेंट जो है, दिस इज द पिक्चर ऑफ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम. ये तो आपको पता ही है. दिस इज द पिक्चर ऑफ द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, है ना? है ना? तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम. तो दिस सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, इसके कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द सीएनएस. अगर ऐसे हम लोग काटेंगे, है ना, द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द सीएनएस इज दिस वन. सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द सीएनएस. ठीक. अब जरा देखिए इसके कंपोनेंट्स में क्या आएगा. दिस इज द फोरब्रेन. दिस इज द फोरब्रेन which is also called the prosencephalon. And this forebrain, तो ब्रेन का कंपोनेंट्स में क्या है? नंबर 1 is forebrain which is also called the prosencephalon, जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आउटर एंड इनर. सो आउटर एंड इनर. तो आउटर इज कॉल्ड द टेलेंसेफेलन and inner is called the diencephalon. ठीक. This happens to be the midbrain.
दिस इज द मिड ब्रेन. कम मतलब चिल्ड. देते मेरा भी तबीयत खराब है एक्चुअली बेटा. बढ़ा दिया 24 रखा. ठीक है, मेरा भी तबीयत खराब है, लेकिन जब मैं अंदर आया तो एक कैसा एक माहौल लग रहा था, इसीलिए थोड़ा चेंज किया. चलो, तो फोरब्रेन और प्रोसेंसेफेलन, उसमें आउटर इज टेलेंसेफेलन, इनर इज डायंसेफेलन. सो इन दिस पिक्चर दिस वन इज टेलेंसेफेलन, दिस इज द टेलेंसेफेलन, and this one are the paired diencephalon. Is the paired diencephalon. अच्छा, इसका ब्लोअर कम कर देते हैं. Paired diencephalon. This one is the midbrain. So midbrain is called mesencephalon. Mesencephalon. And if you think of the midbrain, this midbrain constitutes of two parts. One is called the tectum, the other is cerebral peduncle. And after this midbrain, yahan se leke yahan tak is the hindbrain, preferably called the rhombencephalon. Rhombencephalon. And it constitutes of, so hindbrain or the rhombencephalon, so hindbrain or the rhombencephalon, this rhombencephalon basically constitutes of two components. One is called metencephalon and the other one is called myelencephalon. So one is the metencephalon, the other is the myelencephalon. अब metencephalon जो है, that constitute of the pons and the cerebellum. This is the cerebellum. So metencephalon constitute of the pons, pons and cerebellum. ठीक. And myelencephalon के बारे में बात करेंगे, तो myelencephalon is constitute of the medulla oblongata, right? So myelencephalon constitute of the medulla oblongata. Myelencephalon is composed of the medulla oblongata. ठीक? Now this is medulla, and this part is the spinal cord. So here goes the spinal cord. ये जो part है, this is the spinal cord. So this, by this you can understand that this is the longitudinal view of the central neural system. अब एक और चीज हम लोग जानेंगे. That is, whenever we think of neurons, suppose this is the neuron. The cell body, sorry, the cell body, also called the cyton or the soma or the perikaryon. Do you know these names? So perikaryon matlab cell body, है ना? Cell body or the soma or the cyton or the perikaryon. This one happens to be the axon. Here goes the axon. This is the axon terminal. Now, if I talk of this particular neuron, तो इसमें देखिए, there is the presence of, अगर हम लोग कई सारे न्यूरॉन्स का सेल बॉडी को कंसीडर करें, तो ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, this is the collection of cell body of neurons, collection of cell bodies of neurons. So these are the collection of cell bodies of neurons. अगर सेल बॉडी का कलेक्शन के बारे में हम लोग बात करें, माय डियर स्टूडेंट्स, देन रिमेंबर दिस इज, इसको कलेक्शन को हम लोग कहते हैं ग्रे मैटर. दिस इज कॉल्ड द ग्रे मैटर. यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, GREY. एनसीईआरटी ते GREY আছে, ठीक আছে. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज GRAY अंडर द नेम ऑफ ग्रे. एंड GREY एनसीईआरटी लिख रहा है ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस. एनसीईआरटी लिख रहा है ये GREY क्यों? ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस. ठीक है. So collection of cell bodies of neurons constitute of the gray matter.
whereas collection of axons constitute of the white matter. तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज समझना है आपको कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में भी ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में भी ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है. तो अब हम लोग उसको पढ़ेंगे कि सीएनएस में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या है, पीएनएस में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या है. ठीक. सो आवर टारगेट ऑफ डिस्कशन इज एनसीईआरटी একটা জায়গায় একটা গন্ডগোল আছে जहां पे एनसीईआरटी हैज इंक्लूडेड ग्रे मैटर का जो डिस्कशन है उसमें एक पॉइंट पे एनसीईआरटी डिविएट करेगा. पेज नंबर 321 देखो. पेज नंबर 321 में एक लाइन है, पढ़ो वो सेंटेंस. ग्रे मैटर वाला लाइन पढ़ो. एक लाइन है देखो, ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस. देखो एक सेंटेंस है, पर ठीक है, दरकार नहीं. सो द सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड देयर एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रे मैटर. सेल बॉडीज का कलेक्शन के वजह से ग्रेइश अपीयरेंस, इसीलिए दैट इज कॉल्ड ग्रे. ये ठीक है ना, इट नॉट, इट इज ओके. नहीं तो समझ में आ गया ना. तो ग्रे मैटर मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी गिव्स यू ग्रे मैटर इन द सेरिब्रम. लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को छोड़ के भी ग्रे मैटर होता है. ऐसा नहीं है केवल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर रहेगा. ग्रे मैटर कैन बी प्रेजेंट इन द एंटायर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, in the entire peripheral neural system. There is the problem. इसने लिखा देखो, cerebral cortex constitute of the gray matter. देखा आपने? But it is true that the entire neural system, मतलब central neural system as well as peripheral neural system में gray matter है. It is not that it is only the cerebral cortex that constitute of the gray matter, because collection of cell bodies को ही हम लोग gray matter consider करते हैं. Am I clear? अब जरा देखिए in terms of CNS, और मेरा discussion ही वही है, which is deviating from there, that CNS gray matter कौन सा है? हाँ, हेलो सर, साउंड আসছে না কেন? am I audible? কি হলো রে বাবা? रिकॉर्डिंग तो हो जाবে. you see the recording? No sir. एक सेकंड रुक जा, just give me a moment. ये কোথায় আমাদের সৌরভ চক্রবর্তী ভাইরা কোথায় আছে? সৌরভ চক্রবর্তী ভাই anyone পাঠাও. অমরেশ্বর হলেও হবে, অমরেশ্বর আছে? দেন আমাদের ইয়ে ম্যাডাম, মাজিদা ম্যাডাম, এই এসো এসো, হয়ে গেছে গেছে. ওটা দেখো সাউন্ড আসছে না, স্টুডেন্ট বলছে সাউন্ড আসছে না, প্লিজ চেক. সোমা লিখছে সাউন্ড আসছে না. ना एब्सोल्युटली ओके. ये तो चल रहा है, माइक्रोफोन तो चल रहा है. इसको कट करके फिर बैक करके फिर लॉन्च करो. जल्दी है. Is it audible now? Shoma, is it audible now? দেবপ্রসাদ শুনতে পাচ্ছিস? Is it audible? फिर से लिखो এখানে audible কি. Yes sir. সোমা তাহলে কানেকশনটা ঠিক কর. সোমা লিভ করে জয়েন কর. ওকে ফোন করে বলো. হ্যাঁ, একবার ফোন করে বলে দাও, বুঝে যাবে. Can we start?
सो आवर टारगेट ऑफ डिस्कशन ही है, जो एनसीईआरटी का वो लाइन है उसको डिविएट करके हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज सीएनएस एंड पीएनएस में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ग्रे मैटर, अभी GREY लिखा मैंने एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, ठीक, पीएनएस में भी ग्रे मैटर व्हाइट मैटर दोनों चलेगा। एंड गेट यू व्हाट, वो नो ब्रिटिश और इंग्लिश, ग्रेज एनाटॉमी पढ़ते हो ना, उनके नाम पे वो ग्रे है, GRAY, एंड दिस इज GREY ड्यू टू इज ग्रेइश अपीयरेंस। एनसीईआरटी लिखा है GREY, एजर्शन अगर वो है तो उसका रीजन है ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज एंड देयरफॉर ग्रेइश अपीयरेंस। समझ में आया? एजर्शन रीजनिंग अगर उस पर फ्रेम किया जाएगा तो उसका आंसर वही होगा। आप लोग GREY आंसर करोगे क्योंकि एनसीईआरटी हैज रिटन GREY, बट इट कैन आल्सो बी GRAY। आप गूगल करोगे तो यू विल सी GRAY एज वेल। चलो, अब ये ग्रे मैटर जो है इसमें अब आपको समझ में आएगा। तो ग्रे मैटर इन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, इसका दो पार्ट्स है, सो ग्रे मैटर माने इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, फोटोग्राफ भी बनाएंगे, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। अब देखिए, आउटर और आउटसाइड, आउटसाइड और आउटर, अगर ग्रे मैटर आउटर सरफेस पे है मतलब सेल बॉडी का कलेक्शन ऑन द आउटर सरफेस, दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी डायरेक्टली सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंस्टिट्यूट ऑफ ग्रे मैटर लिखा है। तो ग्रे मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द आउटर सरफेस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, एंड इनर that is called the nucleus। जैसे हाइपोथैलेमस में सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है? तो न्यूक्लियस इज अगेन द कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर इनर टू द ब्रेन, माने सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। समझ में आया? तो सीएनएस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन नहीं चाहिए, ये हटाओ, स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व। तो अब जरा देखो, इसको अगर हम लोग इस तरह से सोचते हैं, अगेन लेट्स गो फॉर दिस फोटोग्राफ, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सेल बॉडीज आउटर सरफेस पे है, this is the cortex, huh? This can be called the cerebral cortex, it can be present here as well, the cerebellar cortex. So cortex can be of two types, cerebral and cerebellar. So this is cerebellar cortex. आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? नो सर, फिर से बताए। मैंने कहा कि ये जो कलेक्शन ऑफ these are neurons, न्यूरॉन का सेल बॉडी है, अगर न्यूरॉन का सेल बॉडी आउटर सरफेस पे रहता है तो दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, और इनर सरफेस में जब जाएगा दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो हियर अगर ये सेल न्यूरॉन्स है, सपोज ये है न्यूरॉन, ये है सेल बॉडी, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस तरफ, ये है सेल बॉडी, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस तरफ। एम आई क्लियर? क्योंकि ब्रेन में आपको पता है अगर इधर इंजुरी होगा तो लेफ्ट साइड पैरालिसिस, इधर इंजुरी होगा तो राइट साइड पैरालिसिस। इसका समझ में आया? क्यों समझ में आया? बिकॉज न्यूरॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इज कॉल्ड कॉन्ट्रालैटरल डिस्ट्रीब्यूशन इन द ब्रेन। समझ में आया? बट इन द सेरिबेलम, मतलब सेरिब्रम में कॉन्ट्रालैटरल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये माने ऑपोजिट साइड में जाएगा। अगर सेल बॉडी राइट साइड में ओरिजिनेट किया है, उसका एक्सोनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेफ्ट साइड में, एंड वाइस वर्सा। बुझते पारो? तो ये जो कलेक्शन है, इसको, इस रीजियन को कहते हैं कॉर्टेक्स। तो ये सेरिब्रम में है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम में है तो सेरिबेलर कॉर्टेक्स। एम आई क्लियर? बट यू सी द न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हियर,
for example, neural distribution from here, for example. सेरिबेलम में वैसा नहीं है, सेरिबेलम में ऐसा नहीं है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम साइड. तो सेरिब्रम में जो न्यूरॉन्स है माय डियर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑपोजिट साइड में है, लेकिन सेरिबेलम में सेम साइड, इप्सिलैटरल. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूरॉन इन द सेरिब्रम इज कॉन्ट्रालैटरल, देख, बट सेरिबेलम में सेम साइड. गॉट इट? तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे. तो आउटसाइड जो है, दिस रीजियन जो है, दिस इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. इसीलिए कॉर्टेक्स का दो टाइप, वन इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, one is the cerebral cortex and the other one is cerebellar cortex. Clear? Done? अब so this is outside. अब inside अगर कोई न्यूरॉन का सेल बॉडी अंदर है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे. लेट्स कंसिडर लाइक दिस. दिस इज दिस साइड और इसका जो है दिस साइड. Got it? So इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये इस तरफ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ. Got it? तो ये क्या है? What is this? Inner surface. ब्रेन का inner surface में collection of cell body. So these are nucleus. These are the nucleus. है ना? और outer surface में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, that is the cortex. It can be cerebral cortex, it can be cerebellar cortex. Am I clear? बोल. अगर सेरिब्रम में है तो कॉन्ट्रालेटरल, अगर सेरिबेलम में है तो इप्सिलेटरल. उसमें क्या प्रॉब्लम? वो छोड़ दो, मैं पिक्चर बना रहा हूं इसीलिए मैं गलत पिक्चर नहीं बना सकता, बट दैट विल नॉट अफेक्ट योर एग्जामिनेशन. वो कॉन्ट्रालेटरल है कि इप्सिलेटरल है, दैट विल नॉट नेवर बी आस्क्ड, बी रेस्ट एश्योर्ड. ये ठीक है? इसको लेके कोई दिक्कत? प्रेजेंस ऑफ द कॉर्टेक्स एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के एग्जांपल ले लेते हैं. दो न्यूक्लियस का फोटोग्राफ एनसीईआरटी में है, और न्यूक्लियस का डेफिनेशन भी एनसीईआरटी में है. केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन निकालिए 332 में निकालिए. केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में न्यूक्लियस का डेफिनेशन हाइपोथैलेमस के अंदर दिया हुआ है. दीज आर ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रिलीजिंग हार्मोन्स. देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना? सेकंड पेज ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, केमिकल सेकंड पेजे আছে. दीज आर ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रिलीजिंग हार्मोन्स लिखा আছে. So that is nucleus. उसका एग्जाम्पल भी 333 में पिक्चर में दिया हुआ है. 333 में पिक्चर में दिया हुआ है. देखो हाइपोथैलेमस के ऊपर दो न्यूक्लियस है, एक है सुप्राऑप्टिक, एक है पैरावेंट्रिकुलर, है ना? तो इसका दो एग्जाम्पल, न्यूक्लियस का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं. ग्रुप्स ऑफ न्यूरो, एनसीईआरटी का लाइन, न्यूरो secretory cells releasing hormones. These are groups of neurosecretory cells releasing hormones, and these are called nucleus. And moreover, example लेते हैं इसका, है ना? supraoptic and paraventricular. दो एग्जाम्पल तो बहुत कॉमन है, एनसीईआरटी का भी फोटोग्राफ है. एक रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, एक रिलीज करता है वैसोप्रेसिन, राइट? These are present in the hypothalamus. Our supraoptic nucleus and paraventricular nucleus are present in the hypothalamus. Who said? I said cerebellum as well. सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, स्पाइनल कॉर्ड सब है. समझ में आया? तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में इनर पार्ट में है न्यूक्लियस, आउटर पार्ट में है कॉर्टेक्स. ये क्लियर है? डन हो गया हर किसी के लिए? प्रोसीड करें हम लोग. अब जरा देखिए व्हाइट मैटर इन केस ऑफ सीएनएस. तो व्हाइट मैटर इन केस ऑफ सीएनएस, व्हाइट मैटर कैसे बनता है? बंडल ऑफ एक्सॉन्स, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, collection of axons, है ना? So bundle of axons in the CNS अगर कंसीडर करें तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जरा पिक्चर देखते हैं. इसी पिक्चर को फिर से बनाते हैं. एक पिक्चर को बहुत बार बनाना पड़ता है, तब जाके कॉन्सेप्चुअलाइज होता है बेटा. देखिए किस तरह से होगा.
ठीक है, अब जरा देखिए किस तरह से होगा. तो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, सपोज दिस इज द सेल बॉडी, सेल बॉडी कॉर्टेक्स था ना. ठीक, अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट होती ही पड़े, हो ही सकता है. जैसे कि देखो, इधर से इधर तक गया, इधर से इधर तक गया. गॉट इट? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट. सो दिस कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, ये जो कलेक्शन है इसका नाम है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमीशियर. क्या कहते हैं? तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इसको कहते हैं कॉमीशियर. एनसीईआरटी तक की बोला আছে সেটাও বলবো. एनसीईआरटी भी कहा है एक चीज बताएंगे, डोंट वरी. तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स आर मूविंग. तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इधर देख, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक्सॉन्स आर कम्युनिकेटिंग, है ना. So this is the bundle of axon or the commissure which is connecting the right and left cerebral hemisphere, and this such a commissure is known as, the largest commissure of the body is called the corpus callosum. Am I clear? If the cell bodies are here, cell bodies are here, तो right to left, left to right ऐसे जा रहा है. So these are the axons. Collection of axon is called the white matter. So this collection of axon from right to left, left to right, this collection of axon is called commissure. And the largest commissure is called the corpus callosum, which is connecting the right and left cerebral hemispheres. Very much in the same way, very much in the same way. So let me write here. Example, corpus callosum is the largest. ये कनेक्ट किसको करता है? Connecting the right and left cerebral hemispheres. Connecting the right and left cerebral hemispheres. Got it? And there is another one. Let's consider this one. This is what? The cerebellum. तो cerebellum में भी तो commissure है. Right to left, left to right, right to left, left to right. Cerebellum में भी तो commissure है. This collection is called vermis. So what is vermis? It is again the bunch of axon or the white matter connecting the right and left cerebellar hemisphere. Am I clear? So what is, this is the second largest commissure of the body. So second largest commissure. है ना? Connecting the right and left cerebellar hemispheres. Connecting the right and left cerebellar hemispheres. This is point number, example number 1. This is example number 2. Am I clear? Right to left, left to right is done. पुरस्कार সবার কাছে चलो बेटा केनेथ ठीक है ना चल नेक्स्ट अब देख another bunch distribution above downwards below upwards ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जांपल देखते हैं above downwards below upwards. So second, right to left, left to right हो गया. Number 2, above downwards and below upwards. ऐसा भी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. मतलब if you see like this, ऊपर से नीचे, ये देख, इधर से इधर अभी बनाया मैंने, इधर से इधर अभी बनाया मैंने, और फिर इधर अगर कोई सेल बॉडी है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस तरफ, इधर भी कोई सेल बॉडी है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस तरफ. तो ये बंच ऑफ एक्सॉन बना ना इधर, अबव डाउनवर्ड्स बिलो अपवर्ड्स. समझ में आया? सो दिस बंच ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड ट्रैक्ट. दिस इज कॉल्ड ट्रैक्ट. So these are called the tracts. NCERT has not differentiated between commissure and tract. Therefore, in page number 320, you will see that NCERT has written about corpus callosum as a tract. NCERT has used the word tract twice. Corpus callosum में tract लिखा है,
একটা জায়গাতে কোন পাতা দেখছিস ওখানে তো নেই, ওকে একটু হেল্প কর, পেয়েছিস? ওটা কোনটা? ওটা তো পন্स, ওটা অন্য। तो एक जगह पे कॉर्पस कैलोजम में ट्रैक लिखा हुआ है, एक जगह पे आप देखिएगा 321 में, मतलब हाइंड ब्रेन में जो पॉन्स है, पॉन्स का जो स्टेटमेंट है, कंटेन फाइबर्स ट्रैक्स दैट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, देखो लिखा है। इवन समरी में भी वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इवन समरी में भी वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है माय डियर। So tract word has been used. NCERT has not differentiated between commissure and tract, but specifically that is commissure and this one is tract. Above downwards, below upwards agar jayega, that is tract. Am I clear? Done? Chal, next. Point number 3. Anterior, posterior, posterior, anterior. सामने से पीछे, पीछे से सामने, वो भी तो होगा डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो anterior to posterior, anterior to posterior, posterior to anterior, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है माय डियर स्टूडेंट्स। सामने से पीछे, पीछे से सामने, वो भी तो होगा। चलो पिक्चर बनाते हैं, सामने से पीछे, पीछे से सामने। चल इसको बनाते हैं, इधर से पीछे जाएगा, इधर से पीछे जाएगा, और पीछे मतलब 2D फिगर है तो इधर से बनाते हैं, पीछे से सामने आएगा, पीछे से सामने आएगा। समझ में आया? 2D है तो दिखा नहीं पा रहे हैं, अगर ब्रेन ऐसा है तो पीछे से सामने, सामने से पीछे। समझ में आया? বুঝতে পেরেছিস? যেটা 2D তে ফটো আছে না, তো আমি দেখাবো কি করে। तो ब्रेनটাকে যদি सामने से पीछे जाएगा, पीछे सामने आएगा, वो भी तो है। एंड दिस कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है माय डियर, ये जो बंच है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन फाइबर। दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन फाइबर, fibers. So this is association fibers. अब इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, सामने से पीछे और पीछे से सामने, इट्स अ वेरी शॉर्ट न्यूरॉन, था ना? इट्स अ शॉर्ट न्यूरॉन, ये तो समझ में आता है। सामने से पीछे, पीछे से सामने, इट्स अ शॉर्ट न्यूरॉन। चलो एक फोटो बनाते हैं इधर, जरा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। सामने से पीछे, सामने से पीछे, पीछे से सामने, पीछे से सामने, तो ये जो बंच बना, दिस इज एसोसिएशन फाइबर। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये न्यूरॉन को हमने कंसीडर करा, दिस न्यूरॉन या दिस न्यूरॉन, दिस एंटायर न्यूरॉन इज कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन। ভালো করে বোঝো, the neuron is called the association neuron, the axons are called association fiber, the cell bodies of neuron, the cell bodies of neuron, the collection of cell bodies, the collection of cell bodies of association neurons, association neurons are called association area. Collection of cell bodies, the gray matter, that is called the association area. বুঝতে পারছিস? বুঝতে পারলি আমি কি বললাম? একটা নিউরন, ভালো করে ভাব, এই মেয়েটাকে ভাব, এটাকে ভাব, এই সামনে থেকে পেছনে, পেছন থেকে সামনে। এবার এই যে বাঞ্চ অফ এক্সনটা আছে, আমি ধরলাম ধর, যেটা এই বাঞ্চ অফ এক্সনটা, দিস ইজ কল্ড অ্যাসোসিয়েশন फाइबर। टोटल न्यूरॉन का एसोसिएशन न्यूरॉन, और एसोसिएशन न्यूरॉन का जो सेल बॉडी का कलेक्शन होगा, दैट इज अ ग्रे मैटर फॉर्म बाय एसोसिएशन न्यूरॉन सेल बॉडीज, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन एरिया। इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने सीखा दैट ग्रे मैटर, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ एसोसिएशन न्यूरॉन्स, एरिया। इससे आप क्या सीखा? एरियाज ऑफ ब्रेन आर नथिंग बट ग्रे मैटर। जब हम लोग एरियाज ऑफ द ब्रेन के बारे में बात करते हैं माय डियर, दीज आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज एंड दैट इज ग्रे मैटर। समझे? एंड इसी तरह का एसोसिएशन एरियाज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इसीलिए एनसीईआरटी पेज नंबर 321 लिख रहा है, देख एसोसिएशन एरिया के बारे में, these are large areas of cerebral cortex which are neither sensory nor motor but responsible for intersensory functions like communication, memory. लिखे तो, these are large areas of the cerebral cortex
विच आर नीदर सेंसरी नॉर मोटर। मतलब ये जो एसोसिएशन एरिया बनेगा ये बहुत सारे जगह में है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। ये सेंसरी भी नहीं है, ये मोटर भी नहीं है। ये मैं अपना वीडियो क्यों, अच्छा इधर है। हाँ, ये सेंसरी भी नहीं है, ये मोटर भी नहीं है माय डियर। ये सेंसरी भी नहीं है, ये मोटर भी नहीं है। क्यों, क्या पूछ रहा है बोल। हाँ तो ठीक है, उसको हम लोग सेंसरी बोल नहीं पाएंगे या तो मोटर भी बोल नहीं पाएंगे, अभी दिखा रहे हैं क्यों। तो दीज आर लार्ज एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच आर नीदर सेंसरी नॉर मोटर। ना तो इसका फंक्शन को आप सेंसरी बोल सकते हो, ना तो इसका फंक्शन को आप मोटर बोल सकते हो। मतलब एसोसिएशन एरिया का जो फंक्शन है माय डियर, इसको सेंसरी भी आप नहीं बोल सकते, इसको मोटर भी आप नहीं बोल सकते क्लियरली। क्यों, बिकॉज एग्जाम्पल लेते हैं इसका फंक्शन। चलो फंक्शन, पहली बात तो यह है नीदर सेंसरी नॉर मोटर। क्यों, इसका फंक्शन है, ध्यान से सुन, फंक्शन है इकराम। फॉर्मूला क्या है, आइडिया, इंटेलिजेंस, नॉलेज, रीजनिंग, एनालिसिस, मेमोरी। इसके साथ साथ आप कम्युनिकेशन को भी इंक्लूड करो। आप देखिए कोई भी एक फंक्शन उठाइए, इसको आप सेंसरी बोलोगे या मोटर बोलोगे। कोई भी एक फंक्शन उठाओ, यू टेल मी वेदर इट इज सेंसरी और मोटर, यू कैन नॉट से। गॉट माई पॉइंट। कम्युनिकेशन लग रहा है सेंसरी है या तो मोटर है, लग रहा है ना, मोटर लग रहा है ना। कम्युनिकेशन बेटा मोटर कैसे होगा, आप मुझे देख के ही समझ में आ जाएगा आपको कि सर का मूड क्या है। डू आई नीड टू कम्युनिकेट, but that is a form of communication for you, right? So for you that is sensory. lag raha hai motor, for me it is motor, so it's neither specifically sensory nor motor. idea aaya, sensory kaise ho gaya, you cannot. knowledge, reasoning, so this cannot be specified under sensory ya to motor. memory, एनालिसिस, समझे। इंटेलिजेंस क्या बोलोगे, बोलेंगे कैसे, है ही तो नहीं। ठीक, थियोलॉजिस्ट तो चलो सेटल हो जाता है थोड़ा, हो गया। तो एसोसिएशन एरिया का जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, ये स्टेटमेंट डन है, बोल बोल, ये स्टेटमेंट डन है। किसी के मन में कोई भी दुविधा उस सेंटेंस को लेके। लार्ज एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सर लार्ज एरियाज कैसे, मैं बताऊंगा, मैं फोटोग्राफ बनाऊंगा, डोंट वरी। तो हमने ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का चर्चा करते करते हमने एसोसिएशन एरिया पढ़ा दिया आपको, और यह भी बता दिया कि एरियाज ऑफ द ब्रेन इज नथिंग बट द ग्रे मैटर, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख तो ये निपटा दिया हम लोगों ने। तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, कमिशियर, above downwards, below upwards, tract, and anterior posterior posterior anterior, that is association fibers। समझ में आ गया, any doubts to anyone? चल केनेथ, any doubt? चल अब जरा बात करें पीएनएस के बारे में, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में ग्रे मैटर, तो पहली बात तो यह है हम लोग को समझना पड़ेगा इस फोटोग्राफ में या तो कोई और फोटोग्राफ में पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का ग्रे मैटर कैसे बनेगा। डेफिनेटली कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी से बनेगा। तो देखते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अगेन लेट्स गो फॉर द सेम डायग्राम, थोड़ा छोटा बनाया, ठीक है। लेट्स गो फॉर द सेम डायग्राम। अब सेरिबेलम करने की जरूरत नहीं है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, मतलब इसके बाहर न्यूरल सिस्टम आउटसाइड द सीएनएस इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, राइट। ये तो हर किसी को पता है। सो द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द पीएनएस, अगर हम लोग इस तरह से बात करें, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द पीएनएस, दिस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन द पीएनएस इज कॉल्ड ganglion. So the collection of cell body in the PNS is called ganglion.
So in the gray matter in PNS is nothing but ganglion. ठीक. And the collection of axon in the PNS, that is the white matter, is called, क्या लिखा मैंने? Nerve. What is a nerve? Nerves are nothing but the collection of axon in the PNS. समझ में आया? So this is nerve. इसीलिए चैप्टर का नाम है न्यूरल सिस्टम बट नॉट नर्वस सिस्टम. चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं लिखा है, बिकॉज नर्व इज कंप्लीटली डिफरेंट. न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स. समझ में आया? So this is the distribution of gray matter and white matter and the concept that lies therein. ठीक. एक छोटा सा चीज बताना है बेटा, अगर आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंशिएट करना है, फॉर ब्रेन द ग्रे मैटर इज आउटसाइड एंड व्हाइट मैटर इज इनसाइड. दिस इज व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर इज आउटसाइड. For spinal cord, it is the reverse. So, white matter is outside, gray matter is inside. तो यही दिया जाएगा आपको, यही दिया जाएगा. एक गोल करेगा और अंदर देगा, है ना? दो गोल लगाएगा, and you will say that this is the brain and here goes the spinal cord. देख लीजिए. कॉल न्यूरॉन. नर्व सेल इज न्यूरॉन, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी नर्व. तो ये अगर नर्व, अब कहां गया, ये अगर नर्व के बारे में बात करिए, नर्व तो न्यूरॉन से ही बनेगा. मैंने तो बंच ऑफ एक्सॉन के लिए बोला, एक नर्व का नाम क्या है? न्यूरॉन. समझ में आया? व्हाइट मैटर इज अ बंच ऑफ एक्सॉन, कलेक्शन. आई हैव नेवर सेड अ सिंगल एक्सॉन, इट्स ऑलवेज अ कलेक्शन. ठीक. एनी डाउट्स एनीवन? फोटो ले लो इसका, सही वाला फोटोग्राफ लेके ग्रुप में डाल दो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर माय डियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर बेटा? किसी के मन में कोई भी दुविधा? Vermis is nothing but collection of axon in the cerebellum. Just like corpus callosum, vermis is there. Corpus callosum दो cerebral hemisphere को कनेक्ट करता है और vermis दो cerebellar hemisphere को कनेक्ट करता है. इसीलिए corpus callosum को largest बोला गया और vermis को second largest बोला गया. वेरी सिंपल. क्या हुआ उम्मे मैडम? टायर्ड हो गई? दिमाग काम करना बंद कर दिया? ब्रेन फैग हो गया? ओके. Is this clear? Can we proceed next to the study? हाँ. ফটো সহি সে লিয়া তো? তুলেছিস ছবি ঠিক করে? এই ভাগ্যলক্ষ্মী, हाँ ठीक है, उसको भेज ग्रुप में ताकि सबको मिल जाए. केनेथ तू ग्रुप में है? बस ठीक. ये बड़ा प्यारा बोर्ड वर्क बना, देख के मजा आ गया. एनीवे, चलो इरेज करें इसको. चल, वेरी गुड. भगवान.
नेक्स्ट दो चीज पढ़ेंगे माय डियर. नंबर वन, ventricles of the brain. Ventricles of the brain. What is this? Ventricles matlab these are cavities in the brain. These are the cavities inside the brain. So these are the cavities inside the brain. Am I clear? So ventricles of the brain matlab we are talking of the cavities inside the brain which is filled with a fluid called cerebrospinal fluid. And this fluid, ध्यान से सुन, this fluid is derived from blood. ये जो cerebrospinal fluid है, this is derived from blood, like the lymph. Lymph भी तो blood से derived है, CSF भी blood से derived है. समझ में आ गया? And the ventricles of the brain, they are 4 in number. They are 4 in number. 4 है, ठीक? 4 ventricles. Now, let's go for it. These two are called the lateral ventricles. From the lateral ventricle, through this opening forms the third ventricle. And here you see the long duct forming and then connecting with the fourth ventricle of the brain. समझे? So this one happens to be the, अच्छा এটা একটু বড় করে করি, এটা কার আছে, रुक जाए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक रीजन है. 2 lateral ventricles. This is the opening, forms the third ventricle, and from here the long duct forming the fourth ventricle. Okay? Now you see here. This is the lateral ventricle. ये भी lateral ventricle. This happens to be the third ventricle. This happens to be the fourth ventricle. ठीक? अब देख, ये जो lateral ventricle है, इसका जो inner lining है, the inner lining of this ventricle, of all the ventricles, इनर लाइनिंग बोल रहे हैं बेटा. This inner lining of the ventricles, the inner lining of the ventricles of brain is called ependyma. क्या कहते हैं? Ependyma. And this ependyma, what kind of epithelium is this? Simple cuboidal ciliated. केवल ciliated नहीं, simple cuboidal ciliated epithelium. And the beating of the cilia helps in the circulation of CSF inside. ये जो अंदर CSF रहेगा, ये beating of the cilia will guide the direction of circulation of this CSF. Am I clear? So, the beating of cilia, the movement of cilia guides the movement of cerebrospinal fluid. Am I clear? Now, these lateral ventricles are also called paracele. Cele माने cavity. Body cavity is called coelom. तो paracele उसी तरह से नाम है. The third ventricle is called diacele.
The fourth ventricle is called metacell. ठीक. There is a collection of blood vessels and nerves. There is a collection of blood vessels and nerves. Collection of blood vessels and nerves. Green nerves and red blood vessels. This collection of blood vessels and nerves is called the choroid plexus. Plexus माने network. Plexus मतलब plexus हो गया, reticular हो गया. All the meaning of these words are network. So, choroid plexus, which synthesize the cerebrospinal fluid, and the cerebrospinal fluid fills the lateral. This cerebrospinal fluid fills the lateral ventricles of the brain. Am I clear? This cerebrospinal fluid fills the lateral ventricle. From the lateral ventricle, it moves to the third ventricle through an opening. This opening is called foramen Monroe, M-O-N-R-O-E. The opening with which the cerebrospinal fluid comes from the lateral ventricles to the third ventricle is called foramen Monroe. And from the third ventricle, this cerebrospinal fluid will be drained into the fourth ventricle of the brain, my dear students, and will fill the fourth ventricle, right? Through a duct called the NCERT writes cerebral aqueduct or iter or aqueduct of Sylvius. NCERT writes cerebral aqueduct, midbrain. In midbrain it is written cerebral aqueduct. देखो, runs through the midbrain लिखा है. So, and let me tell you one more thing. This is the circulation of CSF inside. And this CSF from here, कहां जाएगा वो भी हम लोगों को पढ़ना है. वो केवल ब्रेन में रहेगा या it will get distributed as well? Definitely it will get distributed from the brain. So from the fourth ventricle, there are two openings from which CSF will move out. दो opening, right and left, anterior, posterior. Actually दो opening ही है, लेकिन this is called foramen, माने opening of Luschka. You don't need to remember the name. This is also foramen Luschka. This is also foramen Luschka. And here goes foramen Magendie, M-A-G-E-N-D-I-E. So these are the openings through which the cerebrospinal fluid will go out. कहां पहुंचेगा? That I will tell you. Don't worry. इसमें दो और एक. Actually दो मतलब right and left and anterior posterior. एक बॉल है ना, तो anterior posterior right and left. ठीक है? तो अब समझ में आया? तो aqueduct of Sylvius is okay. This is okay. So cerebrospinal fluid. अब cerebrospinal fluid है क्या, उसके बारे में कुछ शब्द. ठीक? Let's talk of cerebrospinal fluid. तो CSF, the cerebrospinal fluid. Remember, within the brain, blood does not circulate. Brain के अंदर blood circulation नहीं है. जो blood vessels है, वो brain के surface पे है, बाहर है. Got it? अंदर, inside the brain, there is no blood vessel. तो brain का अंदर जो nutrition supply करने वाला substance है, that is called CSF. Got it? And this CSF, cerebrospinal fluid, इसका जो origin है, originates from the choroid plexus. ये जो आप देख रहे हो photograph, site of origin of CSF. Derived from the blood. तो मैंने क्या कहा? ये जो CSF है,
उसका डेरिवेशन कहां से होगा? ब्लड से, जस्ट लाइक लिम्फ। लिम्फ जैसे ब्लड से बनता है माय डियर, वेरी मच इन द सेम वे CSF is derived or deduced from the blood. And this CSF इसका composition में essentially आता है सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, प्रोटीन्स etc. And इसका pressure of CSF that is 10 से लेके 12 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। मिलीमीटर मरकरी नहीं है बेटा, सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज द यूनिट। आपके ये पुराना पीएमटी का क्वेश्चन होता था, अभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। सो द कंपोजिशन, प्रेशर ये सब क्वेश्चन अभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इनकम्प्लीट लिख नहीं पाएंगे इसीलिए लिखा मैंने, ठीक है। नाउ फंक्शन क्या होगा? प्रोवाइड्स कुशनिंग करेगा, कुशन इन केस ऑफ एनी सेरिब्रल इंजुरी, बस सेरिब्रल ना, हेड इंजुरी आई शुड राइट, इन केस ऑफ एनी हेड इंजुरी, कोई भी हेड इंजुरी अगर होगा माय डियर स्टूडेंट तब कुशनिंग करेगा। क्योंकि सपोज तालाब है एक, पॉन्ड, एंड यू आर थ्रोइंग अ स्टोन, द स्टोन विल क्रिएट रिपल्स। Why the ripple occur? To decrease or dissipate the energy, है ना? Very much in the same way, point injury में energy को dissipate करता है CSF, नहीं तो damage हो जाएगा brain का। So it protects the brain by cushioning. Next, number 2, it provides nutrition. Provides nutrition to the brain cells. Clear? Provides nutrition to the brain cells. Clear? Next. अब ये CSF के बारे में मैंने बताया। अब CSF कहां रहता है? एक तो आप देख रहे हो विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, और कहां रहता है वो समझने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा द कवरिंग, द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड मेनिंजेस। ठीक? सो आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी द डिस्कशन ऑन meninges. And what is meninges? The external covering of the central neural system, including brain and spinal cord. केवल brain नहीं, केवल spinal cord नहीं, including brain and spinal cord. So the external covering of the central neural system is called, बोलो, meninges. अब देखिए ये meninges का, they are made up of 3 layers. तो outer to inner इसको अगर हम लोग करेंगे my dear students, outer to inner, if I consider this is outer and this is inner, so outer to inner happens to be, but inner to outer you remember the formula as pad. So outer layer, this is called the dura mater, है ना? The middle one is called arachnoid matter, and the inner one is called the pia matter. अब जरा ध्यान से देखिए, outer to inner, तो outer के नीचे जो है वो होगा, so this is called the subdural space. This is called the subdural space, and here goes the subarachnoid. Sub माने नीचे, arachnoid space, right? Right? Generally हम लोगों को पता है that this CSF from here will come out and will ultimately go to the subarachnoid space. समझ में आया? This CSF will come out and ultimately it will go to the subarachnoid space. So subarachnoid space constitute of CSF. Subarachnoid space constitute of, am I clear? Am I clear? So the distribution of CSF will be from the ventricles of the brain to the subarachnoid space, or subarachnoid space is present in the entire central neural system up to the spinal cord.
तो प्रोटेक्शन इज गिवन टू द एंटायर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड का एक लेवल के नीचे वाला पार्ट जो है उसमें सीएसएफ सप्लाई नहीं होता, दैट इज अ नेकेड नर्व। उस जगह पे अगर इंजुरी होगा तो इंजुरी इज लॉन्ग लास्टिंग, वो अलग बात है, लेकिन मेजर पार्ट इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टेड बाय द सीएसएफ। समझ में आया? So this is the distribution and circulation of the CSF, and this circulation is mediated by the beating of the cilia, ependyma, simple cuboidal brushboard, simple cuboidal ciliated epithelium. Sorry. ठीक, am I clear? Any doubts to anyone? पुरस्कार अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये जो CSF है, this CSF provides, the CSF provides the best environment for the multiplication or growth of a bacteria called Neisseria meningitidis, which is also called meningococcus. Am I clear? Coccus है वो, dot shaped bacteria. So the name of the bacteria is Neisseria meningitidis or a meningococcus. This meningococcus multiply. अगर infection हो गया, this meningococcus multiply within the CSF. And this multiplication will result in what? In blocking these openings. Bacteria का cluster होके ना ये जगह को block कर देगा. And when the blockage happens, the CSF will not be supplied to the subarachnoid space, or CSF का stasis हो जाएगा within the ventricle. Severe bursting type of headache होगा. समझ में आया? That is hydrocephalus. In severe bursting type of headache. At the same time, the subarachnoid space is now devoid of CSF. CSF नहीं है. And ultimately, इस कंडीशन को, डिवॉइड ऑफ सीएसएफ मतलब इधर भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ऐसा कंडीशन में द सिचुएशन इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। तो मेनिंगोकोकस का इंफेक्शन से होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजस मतलब ये, मेनिंजस का इन्फ्लामेशन इज मेनिंजाइटिस, आइटिस इज इन्फ्लामेशन। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद द सीएसएफ। एंड जनरली हम लोग सब एराक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ रहता है, यही हम लोग पढ़ते हैं। CSF is present, this is CSF, but subdural space में क्या है ये हम लोग कभी नहीं पढ़ते, ये हम लोग कभी नहीं पढ़ते। क्यों सर? मतलब पढ़ते नहीं है? हाँ क्या है? हाँ, इतना मार मारेंगे ना इसको। सबड्यूरल स्पेस में क्या है हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। एक ही वर्ड पढ़ेंगे माय डियर। There are phagocytic cells here called, phagocytic cells infection से ही रोकेगा, called, क्या नाम था? मेनिंगोसाइट्स। मैं ही भूल रहा हूं। जनरली ब्रेन में हम लोग केवल एक phagocytic cells पढ़ते हैं, माइक्रोग्लिया, but this is another phagocytic cell present in the subdural space that is called meningocytes. No sir, सबड्यूरल स्पेस में है वो। अरे उस बैक्टीरिया को लेके अगर ये हो गया तो कोई बचेगा नहीं, 100% डेथ है। मेनिंजाइटिस से बचता हुआ देखा है किसी को? ऑलमोस्ट 100%, सीवियर फॉर्म में 100% डेथ। These are the phagocytic cells of the meninges, इसीलिए मेनिंगोसाइट्स लिखा गया। ये मेनिंजाइटिस का बैक्टीरिया से ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाता, इसका प्रॉब्लम। मेनिंजाइटिस इसीलिए अनक्योरेबल है, इनक्योरेबल है, सॉरी। ठीक है? एम आई क्लियर? हाँ बोल। प्रिवेंट करना मुश्किल है और समझ में भी नहीं आता किस तरह से ये इन्फेक्शन हो जाएगा। ब्लड से ही इन्फेक्शन जाता है बेटा। दिस इन्फेक्शन गोज थ्रू ब्लड। बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन्स एंड देन ट्रेवल्स फ्रॉम ब्लड से ही, और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि उधर तो एस्ट्रोसाइट्स है ना ब्लड ब्रेन बैरियर जैसा,
जो ब्लड और सीएसएफ को डिफरेंशिएट करता है, लेकिन दैट पासेस टू द एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता। কিরে ভাগ্যলক্ষ্মী, এই যতটা পড়ালাম এটার কতটা পার্সেন্ট পড়েছিলিস আগে? একটা পার্সেন্টও পড়িসনি বোধ হয়, ভুলেই গেছি। যাই হোক, ঠিক আছে, ছেড়ে। ঠিক আছে বেটা, সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট। স্যার वो মেনিঙ্গোককাস का কি বলেছিলেন? মেনিঙ্গোককাস বলেছিলাম যে মেনিঙ্গোককাস মাল্টিপ্লাই করবে উইদিন দ্য সিএসএফ এবং আলটিমেটলি মাল্টিপ্লাই করে ব্যাকটেরিয়াল কলোনি ফরমেশন করে ওই ফোরামেন লুস্কা ফোরামেন মাজেন্ডি গুলোকে ব্লক করে দেবে। তার ফলে সিএসএফ টা পাস করতে পারবে না ফ্রম দি क्या नाम है ventricles into the subarachnoid space. Therefore subarachnoid space or the meninges will be devoid of CSF and thereafter it will cause inflammation of the subarachnoid space and therefore it is called meningitis. क्या हुआ? हाँ, এই তুই জোরে জোরে কথা বল। 4, হ্যাঁ নিচে 4, সামনে পেছনে আছে দুটো সাইডে। goes to the subarachnoid space and the exhaustion. ও একটা ভ্যালু লিখিনি তো CSF এর। Total volume of CSF, it is approximately 500 ml per day, but at any instant তোর কথা থেকে মনে পড়লো, but at any instant it is approximately 150 ml। इसका मतलब सिंथेसिस भी होता है, एग्जॉस्ट भी होता है, सिंथेसिस भी होता है, एग्जॉस्ट भी होता है। টোটাল সারা দিন में वो 500 ही बनाएगा। হ্যাঁ স্যার ওটাই বুঝেছি এবার, ঠিক আছে, বুঝে গেছিস, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, হ্যাঁ বুঝে গেছি তো, তুই এটা বললি বলি তো ওটা মনে পড়লো আমার। তাহলে कैटरपिलर কত হেল্প করলো আমার। किसी भी मोमेंट में 150 मिलेगा। दिन में 500 के ऊपर नहीं बनेगा, 450 से 500 है, मैं 500 लिखा। एनीवे ये वैल्यू भी पूछता नहीं है, वो पहले पीएमटी वाला सवाल था 2006, 7, 5 उस ऑप्शन में। अभी ये सवाल पूछता नहीं है। ठीक है, इज इट डन? कोई दिक्कत किसी को? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करेंगे एरियाज ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में बात करेंगे। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे एरियाज हैं। एरियाज के बारे में ऑलरेडी हमने बताया आपको। दीज आर व्हाट? ग्रे मैटर्स, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। चलो तो एरियाज ऑफ द ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं जरा। কিরে ভাগ্যলক্ষ্মী, এই এরিয়াগুলো আছে কিনা দেখ তোর ব্রেনে। नहीं है? भाग्यलक्ष्मी केवल मैं बोलता हूं, कोई अगर भाग्यलक्ष्मी बोलेगा उसका सर तोड़ देंगे, सैजिटल सूचर तोड़ देंगे। The body will be divided into equal halves in only one plane, the left and right, তাই তো? Plane is called sagittal plane। তাহলে bilateral symmetry, और bilateral symmetry कार adult stage bilateral symmetry नहीं। higher organism एकाइनोडर्माटा, वेरी गुड। एप्लेसिया क्या है? आपका है ना, मेरा नहीं है एप्लेसिया, याद करो। सी हियर एप्लेसिया, তাহলে অ্যাফ্রোডাইট কি? সরি, सी हियर एप्लेसिया বুলবাল বলিস না, एप्लेसिया स्नेल ना, एप्पल स्नेल इज एप्लेसिया। भूल गया? ओ कटल फिश क्या है? मोलस्क है तो क्या है? कटल फिश का मैंने वो पूछा था, मोलस्क का सुनने नहीं चाहिए पता ना। बोल मोलस्क का इसमें क्या है? मेंटल कैविटी में क्या है कंपोनेंट्स? मोलस्क का मेंटल में क्या रहता है? मेंटल कैविटी में की feather like gills called cnidia and नहीं cnidia and ওরে আবার পাতা খুলছে, উল্টাচ্ছে পাতা, পেজ নাম্বার 53। উল্টাবি না কেন? পড়িসনি কেন? পড়িসনি হবে? তাহলে 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 মরফোলজি কি হবে, অ্যানাটমি কি হবে?
আমার একটু বীজ দিয়ে আমি খেয়ে মরে যাই। আমার ছাত্র বলছে অ্যানিমাল কিংডম মনে থাকে না। এই বল কি রেডিউলা মাউতে থাকে, সেটাকে মেন্টাল ক্যাভিটিতে ফেলে দিলি? হ্যাঁ, চামড়া গুটিয়ে দেবো মেরে। রেডিউলা, এই রেডিউলা स्टेटमेंट बोल। गुड, ठीक है, बोल 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 बोल, अभी तक नहीं हुआ कंप्लीट। थप्पड़ मारेंगे। Excretory organ, excretory organ and respiratory organs are present in the mental cavity. जैसे excretory का नाम है वो माने organ of Bojanus और the cavus organ। পড়াশোনা হচ্ছে না, ভাগ্যলক্ষ্মী তো ভাবছে আমাকে যেন জিজ্ঞাসা না করে, अगर मुझे पूछा तो मैं तो गया। रिकॉर्डिंग तो है भाई, करता क्या है घर में? कोई काम तो नहीं करता, सिर्फ सोते हैं, सोती है घर में। बहुत मार मारेंगे, मम्मी को बुलाइए। एप्लेसिया कोथा है? स्नेल ना, पीला ग्लोबोसा ना, एप्लेसिया सी हियर, माय मिस्टेक, सॉरी बेटा, भूल हो गया। अनदर सी जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, जो एनेलिडा में है बेटा, मैं पढ़ाया था शायद, एफ्रोडाइट सी माउस, ये मॉड्यूल में है। एनीवे हाँ, हटा तो एप्लेसिया क्या ना माथा लोग है। एनीवे ठीक है, अच्छा हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हुक्का हुआ। पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रहा है। हाँ, सीधा तुझे इधर से फेंकेंगे और सीधा दिल्ली जाके गिरेगी तू। हाँ चल, हे डिस्टर्ब करो, मुझे डिस्टर्ब मत कर, भुला देता है मुझे। हाँ चलो, अब कुछ एरियाज के बारे में बात करेंगे माय डियर। बोले की लोग हैं पूरा पागल। কি বলছিস? কিছু না। इतना एरिया ही पढ़ना है, समझे ना? तो एरियाज में क्या है? दिस एरिया इज कॉल्ड द प्री फ्रंटल एरिया। प्री, तबीयत बिगड़ गया। प्री फ्रंटल एरिया है ना, दिस वन। नेक्स्ट, दिस एरिया इज कॉल्ड द राइटिंग एरिया। दिस इज कॉल्ड द प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया, दिस इज कॉल्ड द सोमैटो सेंसरी एरिया। এই যে তিনটে আছে, दिस इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, BGA। दिस इज द ब्रोकास एरिया, दिस इज द ब्रोकास एरिया। दिस वन इज द gustatory एरिया, दिस वन इज द एंगुलर गाइरस एरिया नाम ही এটা। And this is the visual cortex area, visual cortex area। This is wow, WAO, wow, W for Wernicke, WERNICKE apostrophe S, Wernicke area। This is auditory area, and this one is the O for olfactory area। Enough, और किच्छु बोलता है ना। एंड आई विल शेयर विथ यू वन फोटोग्राफ। ये जो पिक्चर देखिए पेज नंबर 320 का, 320 का जो ब्रेन वाला फोटोग्राफ है, देखिए वो फोटोग्राफ में देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगा हुआ है ब्रेन के ऊपर। ऑल दोज आर एरियाज। मैं एक फोटोग्राफ अभी आपसे शेयर करूंगा जहां पे आप देखोगे हर एक वो जो कलर है, उसी कलर के अंदर मैं मार्क कर दिया कौन सा एरिया है। बुझे क्यों बोल रहा हूं? वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। वो फोटोग्राफ अगर कॉपी पेस्ट होके अगर एग्जाम का क्वेश्चन होगा तो वो बहुत खराब क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग उसके लिए रेडी रहना। वो फोटो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसी पे मार्क किया हुआ है प्री फ्रंटल एरिया। अच्छा, दिस इज द लार्जेस्ट कथा बोलिस ना, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट sulcus called the central sulcus।
দিস ইজ দ্য সেন্ট্রাল সালকাস। এটাকে বলা হয় সিলভিয়ান ফিশার। सिल्वियन फिशर, छोटा सा एक क्रेविस, एक ऐसा फोल्ड छोटा सा, दैट इज कॉल्ड सिल्वियन फिशर। प्रीफ्रंटल एरिया, प्रीफ्रंटल एरिया का फंक्शन है इकराम, जो मैंने बोला था आपको, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। समझे जो मैंने अभी बोला था आपको? ये तो ऑलरेडी बता दिया आपको, इकराम फुल फॉर्म। फिर आ जाओ आप राइटिंग एरिया, तो ये समझते ही हो, अगर ये एरिया डैमेज हो गया तो लिख नहीं पाएगा, दैट इज कॉल्ड एग्राफिया। अगर इसका लिशन हुआ, लिशन माने डैमेज, द कंडीशन इज कॉल्ड एग्राफिया। व्हाट इज एग्राफिया? इनेबिलिटी टू राइट, इनेबिलिटी टू राइट। ठीक, नेक्स्ट, प्री मोटर एरिया, दिस हेल्प्स इन मोटर फंक्शंस। This helps in the motor functions. Many motor functions are helped by this. Somatosensory area, इसका function है T square P square. Touch, temperature, pain and pressure. इसके बारे में NCERT में एक जगह लिखा हुआ है, बताएंगे। Touch, temperature, pain and pressure. समझे? Angular gyrus का function है before and after एनालिसिस ऑफ राइटिंग। लिखने से पहले और लिखने के बाद जो लिखा, उसके बारे में आपको एनालाइज करना होता है, हम लोग करते हैं। यू आर माइट बी एन एक्सेप्शन, कभी कभी तुझे भी प्रॉब्लम है, हाँ कभी कभी क्या, ज्यादातर। ठीक है, सो दिस इज एनालिसिस माय डियर। अगेन दैट इज लाइक what? Association area, function of association area, neither sensory nor motor. Large areas of cerebral cortex ना बहुत सारी जगह पे है। अब देख कहां गया, visual cortex area, sensory area for vision, sensory area for vision, Broca's area, motor area for speech, motor area for speech, এটা কি রে, gustatory area, सेंसरी एरिया फॉर टेस्ट। गस्टेशन माने क्या? टेस्ट। वर्निक्स एरिया, एनालिसिस, अगेन एनालिसिस ऑफ द साउंड हर्ड। जो साउंड सुन रहे हो उसको सुन के एनालिसिस करना, अगेन दैट इज एसोसिएशन एरिया का फंक्शन। वर्निक्स हो गया। ऑडिटरी एरिया, सेंसरी एरिया फॉर हियरिंग, सेंसरी एरिया फॉर हियरिंग। ऑल्फैक्टरी एरिया, सेंसरी एरिया फॉर स्मेल। तो मैंने इधर 3 एरियाज दिखाया जो कि उसका है एरिया फॉर स्मेल। 3 एरियाज दिखाया जो कि एसोसिएशन एरिया का फंक्शन है। प्रीफ्रंटल एरिया, एंगुलर गाइरस एंड वर्निक्स एरिया। So these are the different areas of the brain, और वो फोटोग्राफ भी मैं आपसे शेयर करूंगा। একটা হাই লিখে পাঠাতা তারি, हाँ, सिल्वियन फिशर, सिल्वियन फिशर। टाइम देखिए, खत्म। এই কথা বলবি না, আমাকে একটা হাই লিখে পাঠিয়েছিস, জলদি জলদি কর, তো টাইম নেই, फटाफट फटाफट। পাঠাপাটা হাই লিখে পাঠা শিগগিরই, কেউ একজন জলদি কর। এই পাঠিয়েছিস? থ্যাংক ইউ। ये जो फोटोग्राफ मैं अभी आपको भेजा, एनसीईआरटी का फोटोग्राफ के ऊपर, ये ग्रुप में डाल दे अभी, एनसीईआरटी का फोटोग्राफ के ऊपर लेबलिंग है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। थैंक यू सो मच।